أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت، فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے۔ اس آیت کو آیت بر کہا جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر 177 آیت بر، نیکی والی آیت، نیکی کی تعلیم دی ہے۔ اب آپ غور کریں، ابھی کس کو جواب دیا جا رہا ہے؟ یہود کو، جو مذاق اڑا رہے تھے کہ کیسا دین ہے، کبھی کہتے ہیں کہ مشرق کی طرف منہ کر لو اور کبھی کہتے ہیں مغرب کی طرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اصل نیکی کیا ہے؟ تو پہلی جو حکم آیا وہ عقیدے کا آیا، اللہ، یوم آخرت، فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود۔ ایک تو محبت ہی نہیں ہے۔ ایک ہماری بہن بڑی ہی پیاری بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ میرے میاں کی ترقی ہوئی، میں اپنے میاں سے یہ کہہ رہی تھی کہ جو آپ کی پے بڑی ہے نا، اس کو ہم نے کوشش کرنی آخرت بنانے میں لگائیں، کوئی دین کے کام پہ لگائیں۔ تو اب جب وہ بھائی نعمان فوت ہوئے تو وہ ان کی جٹھانی تھی، تو کہتی ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں اس کام میں لگانا تھا۔ تو میں تو پہلے 3-4 دن پہلے اپنے میاں کو یہ بات کر رہی تھی کہ ہم نے اپنے مال میں اس کو شامل نہیں کرنا۔ بڑی پیاری بات لگی مجھے ان کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ مال دے اور اس کی محبت کے باوجود، محبت ہے مال کی، اس کے باوجود قرابت والوں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافر اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں۔ اب دوبارہ سے یہ سب کون سے کام تھے؟ یہ صدقات کی بات ہو رہی تھی، اور دوبارہ سے اب عبادت کی بات ہوگی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز ساتھ ساتھ چلتی ہے، جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، اللہ کے آگے پھر بھی جھکنا ہی جھکنا ہے۔ اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں، جب عہد کرے، کوئی اتنی نیکیاں کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو جو وعدہ کیا تھا خیر، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور خصوصاً جو تنگی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یعنی مومن آل راؤنڈر ہوتا ہے، جو نیکی اس کو موقع ملتا ہے تو اس کی طرف لپکتا ہے، دوڑتا ہے۔ اپنے رب کو راضی کرنا اس کا مقصد زندگی ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ملے گا اس کو؟ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا۔ ہم نے بھی تو وعدہ کیا نا اللہ سے، اللہ ہم مومن ہیں، اللہ ہم تیرے پر ایمان لاتے ہیں، تو جو ہمیں حکم دے گا ہم کریں گے، بس تو ہم سے راضی ہو جانا اور ہمیں جنت الفردوس عطا کر دینا۔ ہمارا بھی تو یہ عہد ہے نا۔ تو پھر چیک کریں کیا یہ ساری کوالٹیز ہیں ہمارے اندر؟
सुफियान सौरी कहते हैं इस आयत में नेकी की तमाम इकसाम को बयान कर दिया गया। और इसी तरह इब्न कसीर कहते हैं कि सुफियान सौरी बिल्कुल सही कहते हैं, जिसने इस आयत पर अमल कर लिया गोया वो पूरे का पूरा दीन में दाखिल हो गया। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही लोग तकवा वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर मक़तूलों में बदला लेना लिख दिया गया है। आजाद कातिल के बदले वही आजाद कातिल यानी कत्ल किया जाएगा, और गुलाम के बदले वही गुलाम, और औरत के बदले वही औरत। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि अगर कोई अमीर शख्स कत्ल करता है तो उसको सजा नहीं दी जाती। जैसे कोई बच्चा, पिछले महीनों में हमने देखा था कि एक बच्चे ने घर के 4-5 अफराद को मार दिया था, और कहते हैं कि बाप बहुत बड़ा उसका शायद पुलिस में था। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो बच जाते हैं, उनको सजा नहीं मिलती। और वहां पे भी इस्लाम से पहले ऐसा ही होता था कि उसकी जगह किसी, अगर किसी आजाद ने कत्ल किया है तो उसकी जगह गुलाम को पकड़ के कत्ल कर दिया जाता था। तो इस्लाम ने खूबसूरत तरीका नाफिज किया, सबकी जान कीमती है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, कोई आजाद है चाहे कोई गुलाम है। फिर जिसे इसके भाई की तरफ से कुछ भी माफ कर दिया जाए, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अल्फाज हैं। फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीही, कातिल को कहा जा रहा है वो फिर भी क्या है, तुम्हारा भाई है, उससे गलती हो गई है, एक तरह की सिफारिश की जा रही है। अगर कुछ माफ कर दिया जाए तो मारूफ तरीके से पीछा करना है। क्या है दियत, याद है आपको? नहीं, वो तो कसास है ना। 100 100 ऊँट, यानी या तो ये होगा कि कसास कत्ल के बदले कत्ल होगा, या कुछ माफ करना चाहे तो दियत की सूरत भी हो सकती है, और दियत जितनी होगी उसमें भी कमी की जा सकती है। क्या खूबसूरत दीन है हमारा, और अच्छे तरीके से इसके पास पहुंचा देना है, यानी अब तंग ना किया जाए। जैसे हमारे यहाँ होता है कि मीडिया पे आके कह दिया जाता है इतना हम दे देंगे, ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन वो नहीं मिलता। तखफीफु मिन रब्बिकुम व रहमा, ये तुम्हारे रब की तरफ से एक किस्म की आसानी और एक मेहरबानी है। फिर जो इसके बाद ज्यादती करे तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। वलकुम फिल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तत्तकून, और तुम्हारे लिए बदला लेने में एक तरह की जिंदगी है, ए अकल वालों, ताकि तुम बच जाओ। क्या होता है इससे? फिर कसास की वजह से जिंदगी बच जाती है। 100 दफा सोचेगा इंसान कि मुझे ये सजा मिलेगी, अगर मैंने इसको मार दिया तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरका खैरा, तुम पर लिख दिया गया जब तुम में से किसी को मौत आ पहुंचे, अगर उसने कोई खैर छोड़ी हो, अच्छे तरीके के साथ वसीयत करना माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए मुत्तकी लोगों पे लाजिम है। फिर जो शख्स इसे बदल दे और इसके बाद इसे सुन चुका हो तो उसका गुनाह उन्हीं लोगों पर है जो इसे बदलें, यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। फिर जो शख्स किसी वसीयत करने वाले से किसी किस्म की तरफदारी या गुनाह से डरे, बस इनके दरमियान इस्लाह कर दे तो इस पर कोई गुनाह नहीं, यकीनन अल्लाह बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। अब आप जानते हैं कि वसीयत किसके बारे में हो सकती है। एक बहन का सवाल आ रहा था अभी कुछ दिन पहले कि अगर माँ जिंदगी में वसीयत कर दे कि मेरे मरने के बाद सबको बराबर दे दिया जाए, क्योंकि वो जिंदगी में कर रही है, वो बेच नहीं सकती है, तो उसका आसान सा जवाब है कि मरने के बाद विरासत उसी तरह तकसीम होगी जैसे अल्लाह का हुक्म है। जिंदगी में अगर आपने देना है तब आप बराबर दे सकते हैं, मरने के बाद ये फिर किसी के हाथ में बात नहीं है।
वो फायदा ही उसका कोई नहीं है, वो जाया हो जाएगी। अच्छा, अब कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कि जिसमें आप वसीयत कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर बेटा फौत हो गया है तो पोते के लिए, या अगर बेटी फौत हो गई है तो नवासे नवासी के लिए, यानी उसके बच्चे अगर हैं। अच्छा, इसी तरह बाजू का ये होता है कि दादा दादी को दिया जा सकता है। अब जैसे दादा दादी बेटा अगर नहीं है तो फिर तो बेटे की जायदाद में से नहीं ना मिलेगा, दादी की जायदाद में छोटे का हिस्सा नहीं। इसी तरह है ना आंटी। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं जिसका हिस्सा है उसको तो आप दे ही नहीं सकते, जिसका हिस्सा नहीं है शरीयत कह रही है कि नहीं दे सकते, उसको आप दे सकते, उसके लिए आप लिख सकते हैं। बेटे के लिए आप नहीं लिख सकते, बेटी के लिए आप नहीं लिख सकते, लेकिन उनकी औलादों के लिए लिख सकते हैं। अपने वालिद के लिए आप नहीं लिख सकते, लेकिन आप अपने दादा के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट उसमें से अगर नहीं मिल रहा, अपने बच्चे हैं तो दादा को अगर नहीं जा रहा तो उसमें से दिया जा सकता है। हो सकता है किसी की नाना नानी हो, बाप पहले फौत हो गया है और इंसान को फिक्र हो कि इनका पीछे से क्या बनेगा। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें ये चीजें समझाई गई। और कितना दे सकते हैं वसीयत? 1/3 की, वो भी ज्यादा करा पाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ये भी ज्यादा है। और हदीस है, अल्लाह ताला ने हर हकदार को उसका हक दे दिया, चुनाचे वारिस के लिए कोई वसीयत। ये निसाई की रवायत है। तो गुनाहगार होगा अगर कोई अपने वारिसों के, जो अभी मैंने बात की, तो आप तो वारिसों के हक में कर रहे हैं ना वसीयत, वो तो आप कर ही नहीं सकते। अभी करें जो कुछ करना, अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वो हो सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजा रखना लिख दिया गया है, जैसे लोगों पर लिख दिया गया था जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब ये रुकू किसके बारे में है? रमजान के बारे में। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सयामु जुन्ना, रोजा गुनाहों और आग से ढाल है। सुभान अल्लाह। और इसी तरह ये कब फर्ज हुआ था? रोजे कब फर्ज हुए थे? 2 हिजरी में, यानी हिजरत के बाद 2 हिजरी में, जिस साल गज़वा बदर हुई थी। और इसी तरह आयशा बयान करती है कि कुरैश 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखते थे। जब मदीना आए तो इस दिन का रोजा रखा और इसके रखने का हुक्म दिया। फिर रमजान के रोजों का हुक्म जब फर्ज हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अशूरा का रोजा जो है वो फर्ज नहीं रहा, फिर जो चाहता रखता और जो चाहता ना रखता, यानी ये जो 30 डेज है ये बहरहाल पूरे करते हैं। अय्याम मादूदात, कितनी प्यारी बात कह रही, गिनती के चंद दिन है। फमन काना मिनकुम, अब तो रोजे रोजे ही नहीं लग रहे, अब तो इस दफा तो हमें बहुत ही इंजॉय करने वाले रोजे हैं ये तो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हान ताला ने तौफीक दी। जून जुलाई अगस्त रोजे तो वो थे, शुक्र अदा करें कि बुढ़ापे में ठंड 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 के अल्लाह सुब्हान ताला हमें फिर तौफीक दे, गर्मियों के रोजे रखें। फमन कान मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। फिर तुम में से जो बीमार हो या किसी सफर पर हो तो दूसरे दिनों से गिनती पूरी करना है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, ये नहीं कहा गया कि अगर गर्मियों के रोजे थे तो गर्मियों में ही पूरे कर दें, पूरा साल दे दिया। लंबे रोजे थे, चाहे तो आप 12 घंटे में बिल्कुल छोटे रोजे रख के अल्लाह सुब्हान ताला कबूल कर। अल्लाह सुब्हाना ताला भी, हम कुरान पढ़ रहे हैं ना, तो आप एक पेन उठाएं और एक अपने हाथ में पेज रखें और ये देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए आसानियां कितनी रखी हर मामले में। सिर्फ नीयत हमारी दुरुस्त होनी चाहिए, तो हम देखेंगे खास तौर पे सूरह अल बकरा में जो अहकामात आपको मिलते जाएंगे, आसानी ही आसानी। एक लिस्ट बनाएं और फिर आप देखेंगे कि शुक्र से हमारी आंखें झुक जाएंगी।
اور جیسا کہ یہاں پہ بتایا کہ ہم نے کیوں فرض کیے تم پر روزے، تاکہ تم بچ جاؤ، تقوی اختیار کرو. جو انسان روزے کے دوران اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، وہ کسی اور عبادت کے ذریعے نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے جیسے نماز بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں بھی 100% ہمارا دھیان جو ہے نماز کی طرف نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ اس میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہم کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک میں نے قطرہ بھی اندر جانے نہیں دیا، اتنے ہم کانشیس ہوتے ہیں. اور یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور اتنے گھنٹے جو ہیں سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، وہ سب کے سب کس میں لکھے جا رہے ہیں؟ عبادت میں لکھے جا رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے. پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. اور یہ کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پہلی آیت کیا تھی؟ طاقت رکھتے ہو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، مرضی ہے تو روزہ رکھو، مرضی ہے تو نہ رکھو. لیکن پھر فوراً یہ منسوخ ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے. اور کتنا ہے فدیہ؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. ابن عباس عنہ فرماتے ہیں ہر دن کی جگہ نصف سا فدیہ دے دے، ایک روزے کی جگہ 1 کلو اناج فدیہ دے دے، یا ایک مسکین کو بلا کر کھانا کھلا دے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا 2 وقت کا، لوگ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں اس چیز. 2 وقت کا نہیں ہے، کیا کہا؟ مسکین کو بلا کے کھانا کھلا دے، وہ روزہ ہو جائے گا، اس کی سحری بھی ہوگی، افطاری بھی ہوگی. بعض لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے اتنا تو راشن دے دیا، اب اس کی دودھ کے لیے بھی دوں، اس کے پھل کے لیے بھی دوں، اس کی سبزی کے لیے بھی دوں. تو ایسی کوئی مشقت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ایک سوال آیا تھا، یہ کنفرم کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بھی قرآن کی آیت بھی ہم پڑھ لیں گے کہ کراچی میں بتا رہی تھی کہ کسی نے پوچھا سوال کہ اگر ہم لوگ کسی بیمار کی بیماری پہ لگا دیں، ہاسپٹل میں ہے، دوائی نہیں ہے، تو یہ فدیے کی رقم اس میں بھی دی جا سکتی ہے. تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ دی جا سکتی ہے. تو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. ابھی آپ قرآن کی آیت میں بھی پڑھ لیں. ایک مسکین کا کھانا کھلانا، یہ ابھی حدیث میں نے سنائی، ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہوگا. یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا بدل عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کے فدیے لیتے ہیں وہ تقریباً اسی سے ملتے جلتے ہوتے ہیں. کھانا بھی وہ ہونا چاہیے جو آپ خود کھاتے ہیں. بالکل. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. وبینات من الہدی، اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق واضح کرنے کی دلیلیں ہیں. فمن شہد منکم شہر فلیصم، تو تم میں سے جو حاضر ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. رات ہی ایک میری دوست ہے، ان کی سانس کی ڈیتھ ہو گئی. کل بات پرسوں ہو رہی تھی نا کہ پتہ نہیں ابھی کتنے پتے کٹنے، اور یقین کریں کہ وہ کل ہی فوت ہوئی اور 11 بجے پتہ ہی نہیں چلا، حالانکہ قریب ہی گھر ہے. تو رات 11 بجے لے بھی گئے. تو مجھے رات کو بیڈ پہ نیند نہ آئی. میں نے کہا آج قبر کی رات آ گئی، اتنی اچانک، اتنے سڈن. چند گھنٹوں میں ہی ارد گرد ہمسایوں تک، بارشائیاں تک کو نہیں پتا چلا، ان کے سامنے گیٹ ہے. تو دعا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ تو آسانیوں کے معاملے کرنا. کوئی پتہ نہیں کون سی رات ہے جو قبر میں آ جانی اور ارد گرد والوں کو کچھ بھی خبر ہی نہیں. تو جس کو مل جائے، جو یہ مہینہ پا لے تو پھر وہ روزہ رکھے. اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہے. یریدکم اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. اور اگر تم گنتی پوری کرو اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے تاکہ تم شکر کرو. اور ایک حدیث تو بہت ہی خوبصورت ہے روزے کے بارے میں کہ روزے کا کیا اجر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟
روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی ہوں. سبحان اللہ. اللہ کو منانا چاہتے ہیں تو آسان ترین طریقہ بتا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے بندے آپ سے پوچھیں انی فانی قریب، میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک بتا دیں میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ. اذا کا کیا مطلب ہے؟ جب پکاریں گے. سبحان اللہ. کوئی ہے کائنات میں ایسا؟ کوئی اور ذات ایسی نظر آتی ہے اب جب پکارے وہ محبت سے جواب دے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ میری بات مانے. دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. آج اس امت کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کتنی دعائیں مانگ رہے ہیں ہم، نہیں قبول ہو رہی نا، اس لیے کہ ہم بات بھی نہیں مانتے اپنی رب. ناراض کیا ہوا اپنے رب کو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو لازم ہے وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک دعا رد نہیں کی جاتی، ایک دعا قبول کی جاتی. یعنی ایک دعا افطار کے وقت ضرور ہر کسی کی قبول کی جاتی. تو پھر دعاؤں کی کثرت کرنی ہے. اسی طرح صحابہ کرام کی عادت تھی. عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب روزہ افطار کرتے تو اپنے اہل و عیال کو بلاتے اور دعا کرتے. بچوں کے لیے بھی کریں، اپنے لیے بھی کریں اور بزرگوں کے لیے بھی کریں. اور ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرے جس میں نہ کوئی گناہ ہو اور نہ قطع رحمی ہو، مگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک عطا فرماتا ہے. یا تو اس کی دعا جلد قبول کر لیتا ہے، یا آخرت میں اس کا ذخیرہ کر لیتا ہے، یا اس سے اتنی برائی ڈال دے. یعنی ہر صورت ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہونا ہے. صحابہ نے کہا پھر تو ہم بہت دعا کریں گے. فرمایا اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے. تو پھر رمضان کی راتیں اب فوراً ہی آپ دیکھ لیں کہ اسی رکوع کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آج کل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ قریب آ جائیں گے رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ. اور کس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو حدیث سے بتایا گیا؟ ہاں وہ بدبخت ہے. لیکن جو کہا گیا نا وہ ایک لمبی حدیث جس میں بتایا گیا ایک سوار آتا ہے اور اس کے بال خراب ہیں، لباس خراب ہے اور وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی دعا کیسے؟ یعنی مسافر کی دعا ویسے تو قبول ہوتی ہے، حلال جو نہیں کھا. تو پھر اگر چاہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر اس کا کھانا پینا لباس سب کچھ حلال ہونا ضروری ہے، تب دعائیں قبول ہوگی. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے. قطع رحمی کی کہ فلاں جو ہے نا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا ہو جائے. اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے. تو پھر اگر ایسا کریں گے تو ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، اپنا نقصان کر لیں گے. اور اگر آپ دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں سبحان اللہ اس کا کیا اجر بتایا گیا. اگر آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ایک فرشتہ آپ کے لیے وہی دعا کر رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں فرشتے آپ کے لیے دعا کریں تو اپنی دعاؤں میں اپنے بہن بھائیوں کو یاد رکھیں. بہت آسان طریقہ ہے فرشتوں کی دعائیں لینے کا. تو یہ رمضان کے اندر کوئی پریشان ہے، کسی نے آپ کو بتایا کسی نے نہیں بتایا، ایک لسٹ بنا لیں، ان کو نام لے کے ان کا کریں گے اور دعائیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جو مسئلے ہیں جو پریشانی ہے، کسی کی اولاد کے لیے دعا کریں گے اللہ ہماری اولاد کے لیے آسانیاں کرے گا. کسی کے والدین کے لیے دعا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے والدین کے درجات بلند کر دے گا. کسی کی صحت کے لیے دعا کریں گے اللہ ہمیں صحت عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جلدی نہ کریں. حدیث میں آتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جلدی کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ کوئی کہے میں نے دعا کی اور میں نے نہیں دیکھا کہ دعا قبول ہوئی ہو، اور وہ تھک ہار کے بیٹھ جائے تو پھر یہ کیا ہے، اور دعا کرنا چھوڑ دے، یہ جلدی کرنا ہے، یہ ناپسندیدہ۔ مانگتے جائیں، اگر وہ دنیا میں نہیں ہو رہی تو وہ آخرت کے لیے محفوظ ہو رہی ہے، اگر آخرت کے لیے محفوظ نہیں ہوتی تو دنیا میں سے کوئی تکلیف اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹال دیں گے۔ تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا، ہن لباس لکم وانت لباس لہن، سبحان اللہ۔ اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ میاں بیوی کے لیے ادا نہیں کیے جا سکتے۔ چند الفاظ ہیں لیکن اتنی گہرائی ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ جیسے انسان کے ساتھ لباس لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا، شوہر کے لیے بیوی ضروری ہے اور بیوی کے لیے شوہر ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے نا کہ میں رہ لوں گا، میں زندگی گزار لوں گا بڑی آسانی سے، نہیں رہ سکتا۔ آج کل بچیاں بھی ذرا ذرا سی بات پہ طلاق مانگنے لگ جاتی ہیں، میں خود کماتی ہوں، میں نیچے کیوں لگوں، میں کسی کی کیوں سنوں۔ اور اسی طرح مرد جو ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کو بتایا گیا ہے، جس نے پیدا کیا نا وہ جانتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ اور پھر یہ کہ لباس کی اور کیا ہوتی ہے؟ لباس پردہ پوشی کرتا ہے، ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھانپنے والے بن جائیں۔ اور پھر عزت کا سامان ہوتا ہے، ہمارا لباس کیا ہوتا ہے؟ عزت کا باعث ہوتا ہے اور زینت کا باعث بھی ہوتا ہے، بالکل خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے۔ کہیں بھی جاتے ہیں میاں بیوی اکٹھے تو زیادہ پیارے لگتے ہیں کہ نہیں؟ اکیلے جائیں آپ دیکھیں بعض اوقات اس طرح دیکھا گیا ہے، کوئی فیملی گیدرنگ ہے، کوئی خدا نہ خاصا سسرال میں اگر کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہاں پہ اکیلا مرد آ رہا ہوتا ہے بیچارہ، بہت عجیب لگتا ہے۔ جب دونوں آتے ہیں، ادھر ہو یا ادھر ہو، دونوں کو پہنچنا چاہیے۔ بعض اوقات سب لڑکیاں میکے میں آتی ہیں، کوئی فوت ہو گئی ہے وہ بیچاری اکیلی پہنچتی ہے ہر جگہ، یہ بھی ناپسند ہے۔ شوہر کو ساتھ جانا چاہیے، اس میں زینت بھی ہے، عزت بھی۔ اللہ نے جان لیا، بے شک اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے، اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، تو اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ رات کو بھی میاں بیوی ایک مہینے کے لیے مباشرت نہیں کر سکتے تھے، روزہ کے بعد بھی۔ تو اب یہ کہ کچھ صحابہ کرام سے یہ غلطی ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا نہ دی بلکہ کیا کیا، چھوٹ دے دی، آسانی دے دی۔ اس کو بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کریں۔ اور اسی طرح ایک اور آسانی فرمائی، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے، یعنی صبح کی سفیدی تک کھاؤ اور پیو۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ ہاں، اگر روزہ نہیں کھولا اور سو گئے تو پھر کیا ہوگا، اگلا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت صحابی جو تھے کیس بن سرما کے ساتھ ایسا ہوا، سارا دن کھیتوں میں کام کرتے رہے، گھر آئے، بیوی سے کہا کچھ کھانے کو دو، بیوی نے دیکھا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس نے کہا اچھا آپ ذرا یہاں بیٹھے، میں ابھی ہمسایوں سے لے کر آتی ہوں۔ وہ گئی ہیں، اتنے میں آنکھ لگ گئی تو روزہ نیا شروع ہو گیا۔ کتنا مشکل تھا دن۔ تو پھر اب کیا تھا، اب روزہ چلانا تھا، لیکن جب دوپہر کا وقت ہوا تو بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبحان اللہ یہ آیات نازل فرما دی، سب کے لیے آسانی کا باعث بن گئے۔ پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور ان سے مباشرت مت کرو جب تک تم مسجدوں میں معتکف ہو، یعنی اعتکاف کے دوران اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بیویاں جاتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، کوئی کھانا شانا دینے کے لیے، بالکل ساتھ ہی تو تھا، تو ویسے جا سکتی ہیں اگر اس طرح ہو، یا جیسے مرد باہر نکل کے آ جائیں گے مسجد میں، اس طرح تو مردوں کے ایریے میں نہیں جائیں گی، لیکن جیسے مرد باہر نکل کے آ جائے، کوئی بچہ چھوٹا کوئی نہیں لانے والا، ہو سکتا ہے گھر میں کوئی ایسا مرد نہ ہو تو وہ کھانے کا ٹفن جو ہے اپنے شوہر کو پہنچا سکتی ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنَ الْأَمْوَالِ النَّاسِ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔
اچھا ایک سوال بہت آتا ہے، اعتکاف کی بات ہوئی تو ایک صرف امام ابو حنیفہ ہیں جو کہتے ہیں کہ گھر میں اعتکاف عورت کر سکتی ہے، باقی 3 امام کہتے ہیں کہ اعتکاف عورت کا صرف کہاں ہوگا؟ مسجد، صرف مسجد۔ اگر کوئی صورت نہیں، جیسے ہمارے یہاں بازو کا انتظام نہیں ہوتا تو گھر میں کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ شاید وہ اجر تو نہیں ملے گا، لیکن بہرحال نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کر لیں۔ یہاں سے کرسی اٹھا کے درمیان سے کریں۔ اچھا یہاں پہ کیا کہا گیا؟ باطل طریقے سے آپس میں مال مت کھاؤ۔ تو کون سے ایسے طریقے ہیں؟ سود، زنا کی اجرت، ہجومی کی فیس، شراب کی فروخت، لاٹری، جوئے، گانے بجانے کی اجرت، تمام چیزیں، خرید و فروخت میں دھوکہ دینا، مقدمات پر بالکل غلط قسم کے مقدمات، اور اسی طرح مزدوروں سے کام کروا لینا اور ان کو اجرت نہ دینا، بیت المال کا مال کھا لینا، امانت جو تھی اس میں خیانت کر لینا، وراثت کا مال کھا جانا، بیٹیوں کو نہ دینا، بہنوں کو نہ دینا، رشوت سے مال کھانا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ اور لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، ہر ایک کو پتا ہے یہ ٹھیک میں نہیں کر رہا، لیکن آج یہ حرام کھانا بہت عام ہو گیا، بہت عام ہو گیا۔ اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو سمجھداری کہا جاتا ہے۔ یہ بیوقوف، اس نے کچھ بنایا ہی نہیں، اتنے سال سرکاری نوکری کی، اپنا گھر بھی نہیں بنا سکا۔ یسألونک عن الأحلہ، وہ تجھ سے نئے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیں کہ وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، اور نیکی ہرگز یہ نہیں کہ گھروں میں ان کی پچھلی طرف سے آؤ۔ ایک یہ بھی مشکل تھی، کیا تھا کہ انصار کیا کرتے تھے، اگر احرام پہن لیا اور اس دوران میں اگر کوئی کام پڑ گیا ان کو گھر آنا ہوتا تھا تو اب پھلانگ کی دیواریں آتے تھے، اتنی مشکل تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، کوئی بات نہیں، گھر آنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پچھلی طرف سے مت آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو بچے، تقوی اللہ دلوں میں دیکھتا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کے راستے میں لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، زیادتی مت کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑو۔ یہ حکم شروع میں نہیں آیا، بلکہ اسلام کے 21 سال بعد آیا، 13 سال مکہ کے اور اسی طرح 9 سال مدینہ کے، اس کے بعد یہ حکم آیا ہے، جب آپ جانتے ہیں فتح مکہ ہو چکا تھا اس سے نیکسٹ ایئر 9 ہجری میں، کہ اب یہاں پہ کافر نہیں رہ سکتے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہے، پس جو تم پر زیادتی کرے سو تم اس پر زیادتی کرو، اس کی جیسی جو اس نے تم پر زیادتی کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، زیادتی کی ہے تو بھی تمہاری طرف سے پھر بھی زیادتی کی اجازت نہیں، سبحان اللہ۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ آج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے نا مال، یہ پیچھے سے نہیں لائے تھے،
और ना इसको साथ लेके जा सकोगे कब्र में। अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के रास्ते में दे लो, इससे पहले कि तुम्हारा कुछ भी ना रहे। आप जानते हैं विरासत तकसीम होती है तो वाहिद शख्स वो होता है कि जिसकी विरासत तकसीम हो रही होती है, उसको उसके माल में से कुछ नहीं दिया जाता, उसके माल में से कुछ नहीं दिया जाता। कितनी बड़ी इबरत है हमारे लिए, और फिर भी हमें समझ नहीं आती। एक सांस की डोर है बस, वो टूट गई, हमारा कुछ भी नहीं। तो ये जो अल्लाह ने मौका दिया है ना, इसको इस्तेमाल करें, अल्लाह के रास्ते में दें, अपने आप को तबाही में, क्योंकि मरने वाले जो है ना वो हसरत करेंगे कि काश मैं कुछ सदका कर लेता। ऐसा ना हो कि उस वक्त, और इसके अलावा सदके से और क्या होता है, सदका बुरी मौत से बचाता है। जो बहुत सदका करने वाले लोग होते हैं, जब उनकी जान निकलती है, आप हैरान रहेंगे, उनके जिस्म बहुत नरम होते हैं, आम मुर्दे जैसे जिस्म नहीं होते, देखने से पता चल जाता है कि ये सदका बहुत करते हैं, हदीस में आता है, और हमने इसको तजर्बा भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। व अहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। आज सब कुछ हमारे इख्तियार में है। वतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, और हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो। फिर अगर तुम रोक दिए जाओ तो कुर्बानी में से जो मुयस्सर हो करो, और अपने सरों को ना मोड़ो यहाँ तक कि कुर्बानी अपने हलाल होने की जगह पर पहुंच जाए। पहले कुर्बानी की जाएगी और फिर उसके बाद सर मोड़े जाएंगे। फिर तुम में से जो बीमार हो या इसे इसके सर में कोई तकलीफ हो तो रोजे या सदके या कुर्बानी में से कोई एक फिदिया है। फिर जब तुम अमन में हो जाओ तो तुम में से जो हज तक उम्रे से फायदा उठाए तो कुर्बानी में से जो मयसर है। फिर जो ना पाए तो 3 दिन के रोजे हज के दौरान और 7 दिन के इस वक्त रखे जब तुम वापस जाओ। 10 रोजे रखने वहां पे मुश्किल हो जाने हैं तो 3 रोजे वहीं पे रख लें, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं होगी ना कि सब कुर्बानी दे रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर रहा। 3 रोजे रख लेंगे, दिल को तसल्ली हो जाएगी, माल नहीं है, और 7 रोजे घर आके पूरे कर लें। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जुबैर बिन अब्दुल मतलब सबागा गए, उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मैं हज का इरादा रखती हूँ, सहाबिया थी, मैं हज का इरादा रखती हूँ और मैं बीमार हूँ। तो आपने फरमाया हज करो और शर्त कर लो कि मेरे हलाल होने की जगह वो होगी जहाँ अल्लाह ने मुझे रोक लिया। इसको तवज्जो से सुने। मालूम हुआ कि एहराम के वक्त अगर शर्त कर ले तो रुकावट की सूरत में उसी जगह एहराम खोल दे और इस पर कोई कुर्बानी वगैरह लाजिम नहीं। बीमार हैं तो इस तरीके से नियत करेंगे और उसी जगह पे फिर क्या होगा कि वो एहराम खोल सकती हैं, और औरतें ये कर सकती हैं क्योंकि औरतों को ये खतरा होता है मेंसेस का। तो फिर औरतें भी अगर ऐसा कर लेंगी, और अगर उनका दरमियान में ऐसा कोई मसला बन जाएगा, अब वो तो टैबलेट्स तो खाती हैं, सब कोशिश तो करती हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो जाएगा तो फिर अगर वो नहीं भी करेंगी ना कुर्बानी तो भी उनका उज़र कबूल किया जाएगा। और अगर आप कुर्बानी दे दें तो वो पसंदीदा है, लेकिन किसी की मजबूरी हो। जब तुम वापस जाओ, ये पूरे 10 दिन हैं, ये इसके लिए जिसके लिए घर वाले, और इसी तरह रोजे के बारे में भी तो आता है ना कि अगर आपने रोजा रखना है और अगर आप बीमार हैं और लगता है कि बीमारी की हालत है, दिल चाह रहा मैं रोजा रखूं, छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, तो फिर ये मशरूत रोजा रखें। पहले ही कह देंगे अगर मैं ठीक ना रही, तबीयत खराब हो गई तो फिर मैं रोजा खोल दूँ। तो फिर कहते हैं कि उसमें भी फिर उसका कफारा लाजिम नहीं होता। ठीक है, रोजा रखेंगे, रोजा रखेंगे, लेकिन फर्ज का ही कह रही हूँ, कफारा नहीं होगा उसकी, फिर सिर्फ और सिर्फ क्या लौटानी होगी, उसका जो रोजा है वो लौटाना होगा। जिसके घर वाले मस्जिद हराम के रहने वाले ना हो, और अल्लाह से डरो और जान लो बेशक अल्लाह बहुत सख्त अजाब देने वाला है। हज चंद महीने हैं जो मालूम हैं, कौन कौन से हैं,
शवाल, ज़ुल्क़ाद और ज़ुल्हज। फिर जो इनमें हज फर्ज कर ले तो हज के दौरान फमन फरज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फला रफ़स वला फ़ुसूक वला जिदाल फ़िल हज। सुभान अल्लाह। फिर जो इनमें से हज फर्ज कर ले तो हज के दौरान ना कोई शहवानी फेल हो, ना कोई नाफरमानी हो और ना कोई झगड़ा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस घर का हज किया और दौरान हज रफस व फुसूक नहीं किया तो वो उस दिन की तरह गुनाहों से पाक लौटेगा जिस दिन उसकी माँ ने इसे जना था। ये बुखारी की रवायत है। सुभान अल्लाह। अब जैसा कि यहाँ पे आया कि किसी तरह की कोई शहवानी फेल भी ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा भी ना हो, कोई नाफरमानी, किसी भी तरह का कोई गुनाह, कोई किसी के साथ नाज़ेबा गुफ्तगू। मोमिन तो ऐसा सोच ही नहीं सकता वहां जाके। उससे तो सिर्फ और सिर्फ किस तरफ ध्यान होगा कि मेरा रब मुझे माफ कर। ये वाली हदीस और ये वाली आयत अगर सामने होगी, क्योंकि वहां पे चांसेस हैं, ये क्यों ट्रेनिंग दी गई मुसलमानों को ना बेहतरीन, कि वहां तुम लड़ने नहीं जा रहे हो, वो किसी की जगह नहीं है, सब मेहमान है। ये कह देना मैं यहाँ बैठी थी या मेरी बारी पहले है, मैंने वॉशरूम पहले जाना है, मैंने यहाँ बोतल पानी की रखी थी, कुछ भी किसी भी बात पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है और अमूमन होता भी है। लेकिन सिर्फ ये सोच के कि मकसद क्या है, ऐसे हो जाऊंगी अगर मैं झगड़े बगैर और कोई भी नाफरमानी किए बगैर जैसे मेरी माँ ने मुझे आज पैदा किया है। सुभान अल्लाह। तो अगर उस पर नजर होगी तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला सब्र अता फरमाएंगे। वमा तफ़अलु मिन खैरिन यअलमुल्लाह, और तुम नेकी में से जो भी करोगे अल्लाह इसे जान लेगा। और क्या किया करो, ज़ाहिद राह ले लो, बेशक ज़ाहिद राह की सबसे बेहतर खूबी क्या है, तक़वा, डरते रहो। अब क्या था, साहबा कराम ये समझते थे कि वहां पे पहले तो बाजार लगा करते थे, ये वहां जाकर कुछ कारोबार कर लिया करते थे। जैसे आजकल हम होते हैं कि पैसे हमने इकट्ठे पैसे जमा करवाए होते हैं और वहां जाके हमें मिल जाते हैं। पहले जमानों में तो ये नहीं होता था ना, हर कोई इंडिविजुअली जाता था और अपना खर्चा उसने साथ रखना होता था और फिर बाजू का जो है वहाँ पे कुछ कारोबार कर लिया करते थे। तो साहबा कराम ये समझे कि शायद हमारा जो मकसद है वो फौत ना हो जाए, तो उन्होंने इसको गुनाह समझा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि नहीं, तुम अपने साथ ज़ादे राह भी रखो। और बाज ऐसे होते थे, दूसरी जो इस पे एक और भी बात बयान की गई कि बाज कहते थे कि हम अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह हमें खिलाएगा, अल्लाह हमें पिलाएगा। तो वो कुछ भी साथ भी लेके जाते थे। तो ये बात भी क्या है, नापसंदीदा है। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अपने रब का कोई फजल तलाश करो, फिर जब तुम अरफात से वापस आओ तो मशअल हराम के पास अल्लाह को याद करो। कुरैश जुल्फा से आगे नहीं जाते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि मुजल्फा भी जाओ और उसको इस तरह याद करो जैसे उसने तुम्हें हदायत दी। बिलाशुबा इससे पहले तुम यकीनन गुमराहों में से थे। फिर उस जगह से वापस आओ जहाँ से सब लोग वापस आए, अरफात का मैदान। अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। सबसे ज्यादा पूरे साल में जो शैतान बोलता है वो कौन सा दिन होता है, हज का दिन होता है। और क्या कहता है कि सारी जिंदगी मैंने इनको अपने पीछे लगाए रखा और आज इन्होंने ये हज करके अल्लाह से माफिया मांग के अपने आप को बख्शवा लिया, मेरी सारी मेहनत कर चली गई। फिर जब अपने हज के अहकाम पूरे कर लो तो अल्लाह को याद करो, अपने बाप दादा को तुम्हारे याद करने की तरह। अरब में ये होता था ना कि अपने बाप दादा की तारीफ जिस तरह किया करते थे अल्लाह की वैसे नहीं करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, उस तरह करो, बल्कि इससे बढ़कर याद करना। फिर लोगों में से कोई तो है जो कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। कोई तो है जिसको गम दुनिया के हैं, दुआएं दुनिया के लिए निकलती हैं, उठते बैठते सोते जागते, फलां मुल्क में चले जाओ, वहां पे बहुत आजकल फायदा है, वहां पे वीजा लग रहा है, इतना कमा लोगे, फलां जगह अप्लाई कर लो। बाज लोग हैं उनके पास बैठेंगे तो डिप्रेशन होना शुरू होता है, सवाए दुनिया अल्लाह इतना दे भी रहा होता है, लेकिन और की तलाश में रहते। और कुछ ऐसे हैं वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन
कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भलाइयां अता फरमा। ये भलाइयां क्या हैं? जैसे हम औरतें हैं तो हम अगर भलाई का सवाल करते हैं तो इसका मतलब है अल्लाह हमें नेक शौहर अता फरमा। इसी तरह हमें रिस्क हलाल अता फरमा, हमें इज्जत अता फरमा, हमारे साथ नेकी करने वाले लोग हमें अता फरमा, यानी नेक औलाद अता फरमा। अगर जिसकी औलाद नहीं है तो वो भी अगर ये दुआ मांगना शुरू कर देता है, अल्लाह सुब्हान ताला उसको साहिब औलाद कर देगा। जिस चीज की कमी है, अल्लाह जानता है ना हमें किस किस जिंदा रहने के लिए भलाइयों की जरूरत है, वो तमाम भलाइयां इसके अंदर आ जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुआ मांगा करते, और अगर कोई कहता था तो उसके लिए भी फिर यही दुआ मांग के फारिग हो जाया करते थे। और इसीलिए आप देखते हैं तवाफ के अंदर हमें कोई खास दुआ नहीं बताई गई, लेकिन ये दुआ जरूर बताई गई, जिससे पता चलता है इसकी अहमियत का। इस सारी भलाइयां हमारा रब जानता है। जो भलाइयां आज तक हमें मिली हैं हमने कभी सोची भी नहीं थी, हमारे वहम गुमान में भी नहीं थी हमारा रब हमें इतना अता करेगा। तो जब हम उससे सवाल ये भलाइयों का करेंगे, और सिर्फ दुनिया का नहीं, मोमिन की नजर आखिरत पे होती है हमेशा, दुनिया के साथ साथ वफिल आखिरत हसन। और अल्लाह जो आखिरत की भलाइयां, आखिरत की भलाइयों में क्या आ जाएगा? मौत के वक्त जो फरिश्ते आने और रहमत की भेजना, मेरी कब्र उसको कुशादा करना, वहाँ मोमिन के साथ जो मामले पेश आने वो सारे हमारे साथ पेश आए। फिर हशर में वहां पे अल्लाह तू हमें भलाइयां अता फरमाना, आसानियां देना, और फिर उसके बाद जो पुलिस रात है उसमें आसानियां होना, हत्ता के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल। तो कितनी खूबसूरत और जामे दुआ, दुनिया भी आ गई, मुख्तसर तरीन अल्फाज हैं, लेकिन अगर आप इनके मायने देखें तो कितनी गहराई। वक़िना अज़ाबन्नार। और फिर यहाँ से एक और खूबसूरत बात पता चलती है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सूख कर चिड़िया की जैसा हो गया, कमजोर हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या वजह, इसकी वजह क्या है? तो उसने क्या बताया कि मैं कहता हूँ कि ऐ अल्लाह, जो तूने आखिरत में मुझे अजाब देना है तो मुझे दुनिया में ही दे। तो वो कितना मेहरबान और रहीम रब है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या ही अच्छा होता अगर तू इस तरह मान लेता, अल्लाह दुनिया में भी सारी भलाइयां दे और आखिरत में भी भलाइयां अता फरमा। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत दीन है हमारा। और फिर अगली बात क्या है? वक़िना अज़ाबन्नार, है अल्लाह हमें आग के अजाब से बचाना। है रब, हम तुझसे जन्नत मांगते हैं, आग के रास्ते से नहीं। अल्लाह उससे बचा के रखना, हमारी निगाहों से भी दूर रखना। तो फिर क्या मिलेगा? उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसब, ये वो लोग हैं जिनके लिए इनमें से एक हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। दुआएं मांग रहे हैं, कर तो भी कुछ भी नहीं रहे। असल बात ये कि दुआ जो है वो हमारे अंदर जो गम होते हैं ना, वो ढलते हैं दुआ की सूरत में। जिसको जो फिक्र होती है वो वही मांगता है। तो आप गौर करें, जो दुनिया वाले हैं वो सिर्फ दुनिया की फिक्रें करते हैं, दुनिया की दुआएं मांगते हैं, आखिर को मांगना भूल जाते हैं। तो ये कितनी अहम दुआ है जो आखिरी है, वक़िना अज़ाबन्नार। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या खूबसूरत कहा, तो इनमें से एक हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मअदूदात, अल्लाह को चंद गिने हुए दिनों में याद करो। पहले कौन से दिन थे? रमजान के। अब ये कौन से दिन आ रहे हैं? अय्याम तशरीक के, हज की बात हो रही है, 11, 12, 13। तो जो कोई 2 दिनों में जल्द चला जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं, जो ताखीर करे तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। किसके लिए? लिमन इत्तका। असल बात क्या है, कोई मजबूरी है, नहीं ठहर सके 3 दिन, अल्लाह का हुक्म तो 3 था, नहीं, तुम्हारा हज जाया नहीं होगा। सुभान अल्लाह। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, और जान लो बेशक तुम उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। अय्याम मादूदात है, क्या करना है? वज़्कुरुल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका क्या मतलब है? क्या कहनी है, क्या पढ़नी है? तकबीरात पढ़ने के दिन है।
اور صحابہ کرام کا کیا طریقہ ہوتا تھا، اپنے خیموں میں، اپنے بستروں پر، بازاروں میں اونچی اونچی تکبیرات کہا کرتے تھے، اور یہی الحمدللہ یہ سنت اب یہاں پہ بھی ہم لوگ زندہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم عطا فرمایا۔ عورتیں بھی اونچی بلند آواز میں تکبیریں کہا کرتی تھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو بڑی بھلی لگتی ہے، بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، بات کریں تو انسان کا دل چاہتا ہے سنتے چلے جائیں، اور وہ اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے، الد الخصام ہے۔ ویسے اخلاق بہت اچھا، گفتگو بڑی اچھی، لیکن ذرا ذرا سی بات پہ لڑنے بھرنے پہ آ جاتے ہیں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، جب وہ واپس جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام نے ہر اس دروازے کو بند کیا جس سے فساد پھیل سکتا تھا، ہر خیر کے دروازے کو کھولا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کس کی صفت ہوتی ہے کہ جب وہ جھگڑے تو پھر کیا کریں؟ گالی گلوچ کریں۔ منافق کی یہ صفت ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب آدمیوں سے زیادہ مغوث الد الخصم، یعنی سخت جھگڑالو شخص، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک ہو گیا ایسے شخص پہ جو بات بات پہ جھگڑتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو ڈپریشن ہو، اس وجہ سے بھی لوگ بعض کا جھگڑنے لگتے ہیں، لیکن بعض کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے، اور زیادہ تر جو بات بات پہ غصہ کرتے ہیں اس کی وجہ تکبر بھی ہوتا ہے، وہ پھر اس کا علاج کرنا چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے، اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر سخت دل متکبر، بخیل، پیٹو سے بغض رکھتا ہے، جو بازاروں میں شور کرنے والا، رات کو مردار اور دن کو گدھا ہے۔ رات کو مردار، ہوش ہی نہیں ہوتی اس کو، نماز بھی چلی جاتی ہے، مردار کی طرح سویا ہوتا ہے، اور دن کو گدھا ہے، صرف اور صرف دنیا کمانے کے لیے بھاگتا پھر رہا ہے، اور دنیا کے معاملات کا عالم ہے، دنیا کے لیے کسی طرح کا کوئی ٹپ پوچھ لے، کوئی مسئلہ اس پاس بیٹھ جائے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے ساتھ آگے جا کے کیا ہونا ہے، آخرت کے معاملات سے جاہل۔ اللہ کو بغض ہے ایسے شخص سے۔ اور دوسری طرف کون ہے؟ سبحان اللہ، من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تمام صحابہ کرام کے اندر یہ کوالٹی تھی، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، مال، جان، عزیز و اقارب چھوڑ دیے، علاقہ چھوڑ دیا، ہجرت کر لی، سب سے پہلے تو مہاجرین اور پھر اس کے بعد انصار۔ جی انہوں نے کیا تھا، لیکن اگر دیکھا جائے تو سب کے سبھی صحابہ کرام اس آیت پر پورا اترتے ہیں۔ بالکل ام ورقہ ایک صحابیہ تھی، انصاریہ تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب غزوہ بدر ہوئی نا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جنگ میں جانا چاہتی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم ابھی جنگ میں نہ جاؤ، اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرو، عبادت کرو، لیکن تمہیں شہادت ملے گی، گھر پہ ہی نصیب ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کیونکہ یقین تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا اللہ ان کو شہادت کا رتبہ عطا کریں گے، تو پھر صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ آؤ شہیدہ کے گھر چلتے۔ سبحان اللہ، زندگی میں ہی شہیدہ کا لقب مل گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شہادت دی، میدان جنگ میں نہیں دی، لیکن نیت یہ تھی کہ میں غزوہ بدر میں چلی جاؤں، یعنی گھر میں ہی ان کے جو ان کی کنیز کے غلام نے ان کو شہید کیا تھا،
اور किस तरह से पता चला कि वो जब सुबह में तहज्जुद में कुरान पढ़ा करती थी तो हजरत उमर बिन खत्ताब वहां से गुजरते थे तो खुश हुआ करते थे कि कितना खूबसूरत कुरान मेरी खाला पढ़ती है। और कहते हैं कि फिर इस तरह जमात करवाने जाया करते थे और वापस आते थे तो भी उनकी आवाज आया करती थी। तो एक दिन वो जब गुजरे हैं तो वहां पे खामोशी थी, तो बड़े परेशान हुए और उस वक्त नहीं रुके, उस वक्त नहीं देखा, बल्कि सीधे गए जाके जमात करवाई और चेहरे से नजर आ रहा था कि परेशान है। तो सबने पूछा कि क्या मामला है, क्या हो गया, क्या मामला है, क्यों परेशान है। तो उन्होंने बताया कि इस तरह मुझे वर्का हजरत उम्मे वर्का की तिलावत की आवाज नहीं आ रही, कोई परेशानी लग रही है मुझे। जब फिर अंदर गए, फिर दस्तक देते रहे, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, जब अंदर गए तो वो एक कपड़े के अंदर लिपटी हुई थी। और ये उम्मे वर्का ही हैं कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी थी कि आप घर की औरतों की जमात करवा लिया करें। और कहते हैं कि जब वो शहीद हुई तो उसके बाद भी किसी और औरत को एजाज हासिल नहीं हुआ और बहुत ज्यादा कहते हैं कि इबादत गुजार थी, बहुत खुशी से। और फिर उन्होंने कहा था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुअज्जिन मुकर्रर कर दें कि जो अजान दे दिया करे, क्योंकि औरत अजान नहीं दे सकती लेकिन औरत औरतों की जमात घर में करवा सकती है। कौन सी दो जमातें नहीं करवा सकती? एक जुमे की और एक ईद की। जनाजे की भी औरत नहीं करवा सकती, लेकिन दो जो मेन हमारी हैं वो क्या है, ये दो औरत नहीं करवा सकती। नहीं, उसकी भी दलील नहीं मिलती है। वैसे तरावी की करा सकती है लेकिन सलात तस्बीह की इसलिए मना की जाती है कि ये इस तरह से सुन्नत से साबित नहीं। ये नफल, हाँ फर्ज की करा सकती हैं, तरावी की करा सकती है, लेकिन सलातुल तस्बीह जो है ये अपने नफल हैं, अलग अलग पढ़ने हैं, तो इसको इस तरह से इकट्ठा नहीं पढ़ा जा सकता। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, अल्लाह की रजामंदी तलाश करने के लिए अपनी जान तक खपा देता है। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह इन बंदों पर बेहद नरमी करने वाला है। सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। दिलों में ये ख्याल छोड़ दें कि पूरे के पूरे दीन में दाखिल होना तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे, घर वाले हमारे जो रिश्तेदार हैं, अजीज व अकारिब हैं, उनको मैं कैसे फेस करूंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में क्या कह रहे हैं, सहाबा कराम की मिसाल हमारे सामने है, अल्लाह ने जो उनको मकाम अता फरमाया वो हमारे सामने है। आप उनका नाम नहीं ले सकते जब तक आप रज़ी अल्लाह अन्हुम ना कहें। किसी को रहमतुल्लाह कहते हैं ना कि नहीं, तो फिर ऐसा ही नहीं, वो सब दीन में पूरे के पूरे दाखिल हुए हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर उनको ऐसे टाइटल अता किया दीन में। अपने आप को चेक करें, मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, पिछले पारे में आपने पढ़ा अल्लाह से अच्छा रंग किसका हो सकता है। ये दुनिया वालों के जो बनाए हुए फितने हैं या जो शैतान के बनाए हुए जाल हैं, कहीं इनमें हम लोग उलझ के न रह जाए। इतना वक्त नहीं है, जो चीज लगती है कि ये मेरे दीन से मुतसादिम है उसको छोड़ दें और अल्लाह से जुड़ जाए। चेक करें, कोई एक आयत कुरान की ऐसी ना हो जो हमारे खिलाफ मुस्तद हुज्जत। अल्लाह से दुआ है कि ऐ मेरे मालिक, पूरे के पूरे कुरान पे मुझे अमल करने वाला बना। मुझे जो टुकड़े टुकड़े कर दिया था ना, अल्लाह हमें उनमें शामिल ना करना। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, ये शैतान है जो हमें दीन में दाखिल नहीं होने देता। पूरे के पूरे में शैतान के कदमों के पीछे मत चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर इसके बाद फिसल जाओ कि तुम्हारे पास वहां से दलीलें आ चुकी, तो जान लो बेशक अल्लाह सब पर गालिब और कमाल हिकमत वाला है। वो इसके सिवा किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। इनके पास अल्लाह बादल के साइबानों में आ जाए, वल मलाइकतु व कुज़िल अम्र, और फरिश्ते भी और काम तमाम कर दिया जाए,
اور سب काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। वजह रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, और तेरा रब आएगा फरिश्ते जो सफ दर सफ होंगे। सबको पता है हमने जाना है, अगर लोगों को खुश करने की खातिर हमने कुछ अरसा बाद ना भी मानी तो आखिर कब तक इस जमीन पर रह पाएंगे। बनी इसराइल से पूछ लो, हमने इन्हें कितनी वाज़े निशानियां दी। जो शख्स अल्लाह की नेमत को बदल दे और इसके बाद कि इसके पास आ चुकी हो तो यकीनन अल्लाह बहुत सख्त सजा देने वाला है। इन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया, दुनिया की जिंदगी खुशनुमा बना दी गई है और वो इन लोगों से मजाक करते हैं जो ईमान लाए हैं। हालांकि वो जो लोग डर गए हैं वो क़यामत के दिन इनसे ऊपर होंगे। वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। आज दिल तो घुटता है जब कोई मजाक उड़ाता है, लेकिन परेशान ना हो, बहुत जल्दबाजी बदलने वाली है। और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। सब लोग एक ही उम्मत थे, फिर अल्लाह ने नबी भेजे, खुशखबरी देने वाले और डराने वाले, और इनके हमरा हक के साथ किताब उतारी ताकि वो लोगों के दरमियान इन बातों का फैसला करे जिसमें उन्होंने इख्तलाफ किया। और इसमें इख्तलाफ इन्हीं लोगों ने किया जिन्हें वो दी गई थी, इसके बाद इनके पास वाज़ेह दलीलें आ चुकी। आपस की जिद की वजह से फिर जो लोग ईमान लाए, अल्लाह ने इन्हें अपने हुक्म से हक में से इस बात की हदायत दी जिसमें उन्होंने इख्तलाफ किया। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम। अल्लाह जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हदायत देता है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम। क्या तुमने गुमान कर रखा है तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तक तुम पर इन लोगों जैसी हालत नहीं आई जो तुमसे पहले थे। कैसे उनको आजमाया गया, कैसे उनको आगों के साथ चीरा गया, कैसे उनको शहादत दी गई। जो ये हम अहादीस में पढ़ते हैं, आज फलस्तीन में सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस्तकामत आप देखिए, ईमान उनका देखिए, वो सख्त फैलाए गए। वो जुल्जिलु हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू, यहाँ तक कि वो रसूल और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे कह उठे, क्या मदा नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, सुन लो बेशक अल्लाह की मदद करीब ही है। अल्लाह हमें चेक कर रहा है कि हम क्या करते हैं, वरना अल्लाह को अपनी मदद भेजना कुछ भी मुश्किल नहीं। हम सब की दुआ है कि अल्लाह करे कि इनके लिए भी अल्लाह की मदद करीब ही हो। वो तुझसे पूछते हैं क्या खर्च करें, कह दे तुम खर्च में से जो भी खर्च करोगे खैर में से, सो वो माँ बाप और ज्यादा कराबत वालों, यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिर के लिए है। वमा तफ़अलु मिन खैरिन, तुम नेकी में से जो भी करोगे, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो बेशक अल्लाह इसे खूब जानने वाला है। तुम पर लड़ना लिख दिया गया, वहुवा कुर्हुल लकुम, हालांकि वो तुम्हें सरासर नापसंद है। वअसा अन तकरहु शैअन वहुवा खैरुल लकुम, हो सकता है तुम एक चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। जो शहीद को मकाम मिलता है या गाजी को मिलता है, वो घर में बैठने वाले को नहीं मिल सकता। वअसा अन तुहिब्बु शैअन वहुवा शर्रुल लकुम, और तुम एक चीज को पसंद करो वो तुम्हारे लिए बुरी है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। यहाँ पे क्या कहा गया, मोटिवेट किया गया, जंग करना तुम पे फर्ज कर दिया गया। जहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो वहां पे मुसलमान खामोशी से बैठ नहीं सकते। 2 अरब मुसलमान हैं पूरी दुनिया के अंदर, 2 अरब मुसलमान, और वो चंद लाख लोगों की मदद नहीं कर सकते।
अगर मुसलमान तलवार नहीं उठाएंगे तो जो अंदलस में हुआ वही जगह जगह होगा, और हम देख रहे हैं कि वही माजरा हर जगह हो रहा है। वो तुझसे हुर्मत वाले महीने के मुतल्लिक इसमें लड़ने के बारे में पूछते हैं, कह दे इसमें लड़ना बहुत बड़ा है, अल्लाह के रास्ते से रोकना और इससे कुफ्र करना और मस्जिद हराम से रोकना और इसके रहने वालों को इससे निकालना अल्लाह के नजदीक इससे ज्यादा बड़ा है। वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, और फितना कत्ल से ज्यादा बड़ा है। वो तुमसे हमेशा लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें। कैसे दुश्मन हैं। अगर कर सके और तुम में से जो अपने दीन से फिर जाए वह हुआ काफिर, और फिर वो इस हालत में मरे कि वो काफिर हो, फाउलाइका हबतत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, तो जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो गए, यही लोग आग वाले हैं और इसमें हमेशा रहने वाले हैं। तो जो मुर्तद हो जाए उसकी क्या सजा बताई इस्लाम ने? उसको कत्ल कर दिया जाएगा। उसके अलावा क्या सुलूक होगा उसके साथ? नमाज जनाजा अदा की जाएगी? नहीं। मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफना सकते हैं? नहीं। विरासत में से उसको हक दिया जाएगा? नहीं। और निकाह जो है अपनी खत्म हो जाएगा, कोई हक नहीं रहेगा उसका। बेशक जो लोग ईमान लाए, उन्होंने हिजरत की, अल्लाह के रास्ते में जहाद किया, वो भी अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं। अल्लाह बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, तुझसे शराब और जुए के मतलब पूछते हैं, कह दे इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदे हैं, और इन दोनों का गुनाह इनके फायदे से बढ़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग खमर पिएंगे और उसका नाम कुछ और रख लेंगे। आज शराब इस उम्मत में कितनी आम हो गई है, और बाद लोगों ने कहा कि सिर्फ अंगूर की शराब को खमर करार दे के बाकी सब के दूसरे नाम रख के उनको हलाल करार दे दिया। ये बिल्कुल ऐसे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो औरतों की शर्मगाहों को और रेशम और खमर को बाजों को हलाल कर लेंगे। क्या ये सब कुछ हलाल हो नहीं गया उसके माशरे में? वो तुझसे पूछते हैं क्या चीज खर्च करें, कह दे जो बेहतरीन हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए खोल कर आयात बयान करता है ताकि तुम गौर फिक्र करो। दुनिया और आखिरत के बारे में, और वो आपसे यतीमों के मुतल्लिक पूछते हैं, कह दे इनके लिए कुछ ना कुछ सवारते रहना बेहतर है, इस्लाहुल लहुम खैर। कितनी प्यारी बात कही गई। क्यों कहा गया कि जैसे यतीम का जब हक बताया गया और कहा गया शफकत का मामला करो, तो अब लोगों ने उनको कहना ही छोड़ दिया। हम्म? तो इस यहाँ बताने का क्या मायने है कि अगर उनके फायदे के लिए थोड़ी डांट डपट भी करनी पड़ती है, उनको वो गलत काम करते देखें, तो इस्लाह करना फिर भी फर्ज है, बाप नहीं रहा उसका, अपनी जिम्मेदारी निभानी जरूरी है। सुभान अल्लाह। और फिर दूसरा हुक्म, इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम, और इन्हें अपने साथ मिला लो, तुम्हारे भाई हैं। वल्लाहु यअलमु मुफ्सिदा मिनल मुस्लिह, अल्लाह बिगाड़ने वालों को संवारने वाले से जानता है। अगर अल्लाह चाहता तुम्हें जरूर मुशक्कत में डालता, तो मिला क्या लो कि उनका खाना अलग बनता था, उनके लिए आटा अलग गूंदा जाता था कि यतीम का माल ना कहीं खा ले वरना पेटों में आग लगते हैं। तो अब ये बहुत मुश्किल हो गया था फिर सहाबा कराम के लिए, सहाबियात के लिए इस हद तक बचना। बाजू का बच्चा भी उठा के खा लेता घर से। तो फिर ये भी हो सकता था फिर लोग अपने घरों में यतीमों को ना रखते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा, कोई बात नहीं, खुद अंदाजा लगा के कि इतना माल उनका है, तो फिर अपने माल में शामिल कर लो और एक ही जगह पे पका लो और खा लो। बेशक अल्लाह सब पर गालिब और कमाल हिकमत वाला है। मुश्रिक औरतों से निकाह न करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आए,
यकीनन एक मोमिन लौंडी किसी भी मुशरिक औरत से बेहतर है, ख्वाह तुम्हें अच्छी लगे, और ना अपनी औरतें मुशरिक मर्दों के निकाह में दो यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। यकीनन एक मोमिन गुलाम किसी भी मुशरिक मर्द से बेहतर है। सबसे ज्यादा फिर कीमती क्या चीज हुई? ईमान। दुनियावी स्टेटस नहीं देखा जाएगा, ख्वाह वो तुम्हें अच्छा मालूम हो। ये लोग आग की तरह बुलाते हैं, वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मगफिरा, लिबास है एक दूसरे के, एक दूसरे पे असरअंदाज ना हो, ईमान ये हो नहीं सकता। इसलिए अपनी जिंदगी के साथी चुनते हुए खास तौर पे देखा जाए कि वो साहिब ईमान हो। अल्लाह और लोगों के लिए अपनी आयत खोल कर बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और वो आपसे हैज के मुतल्लिक पूछते हैं, कह दे वो एक तरह की गंदगी है, सो हैज में औरतों से अलहदा रहो और इनके करीब ना जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। जब वो गुस्ल कर ले तो उनके पास आओ जहाँ से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। अगर गुस्ल के बगैर गलती से हो जाए तो फिर उसका क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हैज की हालत में बीवी के पास जाए वो 1 दिनार या निस्फ दिनार सदका करे। 1 दिनार या निस्फ दिनार। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। बेशक अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है जो बहुत तौबा करने वाले। अगर कहीं गलती हो गई तो अल्लाह से माफी मांगे, और इनसे मोहब्बत करता है जो बहुत पाक रहने वाले हैं। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, सो अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ, और अपने लिए वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और अपने लिए आगे सामान भेजो, एक या आधा, निस्फ दिनार अपने लिए आगे भेजो। इसका क्या मतलब है? कि औलाद हो और तुम्हारे लिए सदका जारिया बने। इसी तरह किसी सल्फ ने कहा था, मैं बांझ उसको समझता हूँ कि उसकी सारी औलाद में से अगर कोई एक औलाद में उसकी सदका जारिया ना बने। वो शख्स बांझ है, बज़ाहिर दुनिया में उसकी बहुत औलाद हो, लेकिन अगर वो नेक ना हुई तो फिर वो शख्स क्या है? और ऐसा ही हमें एक हदीस में भी मिलता है। अल्लाह से डरो और जान लो अन्नकुम मुलाक़ू, तुम बेशक उससे मिलने वाले हो। वबश्शिरिल मुमिनीन, और ईमान वालों को खुशखबरी दे दो। अगर हम ईमान वाले हैं तो फिर खुशखबरियां ही खुशखबरियां, सिर्फ मुसलमान होने पे खुशखबरियां नहीं मिली। और अल्लाह को अपनी कस्मों पर निशाना ना बनाओ, इससे बचने के लिए कि तुम नेकी करो और गुनाह से बचो, लोगों के दरमियान इस्लाह करो। अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, जब तुम किसी बात पर कसम खा लो फिर देखो दूसरा काम इससे बेहतर है तो अपनी कसम का कफारा दे दो और वो काम करो जो बेहतर है। आपको याद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 माह के लिए कसम खाई थी, मैं बीवियों के पास नहीं जाऊंगा। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कफारा दिया? नहीं दिया था। क्यों? पूरे महीने बाद ही गए थे। और हज़रत आयशा ने कहा था कि आप तो जल्दी आ गए, महीना तो नहीं हुआ। तो क्या कहा था? कोई 29 का भी चांद होता है। तो उन्होंने कफारा नहीं दिया था। कसम खाई, इसको पूरा कर लिया, फिर कफारा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कसम तोड़ रहे तो फिर कफारा दिया जाएगा। लेकिन पसंदीदा नहीं है इस तरह से कसम खाना। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी कस्मों में लाख पर नहीं पकड़ता, बल्कि तुम्हें इस पर पकड़ता है जो तुम्हारे दिलों ने कमाया। अल्लाह बेहद बख्शने वाला और निहायत बर्दबार है। इन लोगों के लिए जो अपनी औरतों से कसम खा लेते हैं, 4 महीने इंतजार करना है, फिर अगर वो रुजू कर लें तो बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। अगर तलाक का पुख्ता इरादा कर ले तो बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है।
اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چیز چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی۔ اب یہاں پہ صرف 3 حیض کی بات آئی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ 3 حیض کے بعد پھر اگلی طلاق دی جاتی ہے، پھر طلاق دی جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف 3 حیض۔ جب 3 حیض گزر جاتے ہیں نا تو اس کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، اگر رجوع نہیں ہوا طلاق ہو جاتی ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اس طلاق میں جو پہلا شوہر ہے اس کو بھی رائٹ ہوتا ہے، اگر وہ دوبارہ سے نکاح کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر اور اس کے ساتھ دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تو کہیں اور بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک شوہر نے 3 مہینے طلاق دی اور پھر اس میں رجوع ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ رجعی ہو گئی، پھر ہو سکتا ہے وہ 10 سال بعد اگلی دے دے، پھر وہ 2 ہو گئی، اور اب جو ہے اگر اس نے 3 مہینے میں رجوع نہ کیا تو پھر اس کے بعد بائن ہو جائے گی، اب اس کو رجوع کرنا تیسری بھی ہو جائے گی نا، 3 مہینے بعد جو تیسری ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ اگر دوسری کے اندر وہ چاہے تو کر سکتا ہے، جب تیسری 3 مہینے گزر جائیں گے تو تیسری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ 3 مہینے گزر گئے، تیسری ہوگی، تیسری کے بعد اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، دوسری میں اختیار ہے، دوسری کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ رجوع جب کرے گا نا تو وہ سمپل رجوع نہیں ہوگا، دوسری کے بعد نکاح کیا جاتا ہے، پہلی رجعی ہوتی ہے اس میں، ہاں جو دوسری ہوتی ہے وہ بائن ہوتی ہے، اگر وہ ہو گئی ہے تو پھر اس میں نکاح ہوگا، لیکن جو پہلی ہے پہلی میں 3 مہینے گزر گئے ہیں تو اب اختیار ہے، کیونکہ وہ ہم اکثر وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں حضرت جمیلہ والی کہ ان کے شوہر نے آ کے دوبارہ کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو ان کے بھائی نے کہا کہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل دیکھیں گے، تو بھائی نے کہا خدا کی قسم میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، تو اس موقع پر پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ نہیں گھر والے مت روکے، اگر عورت جانا چاہتی ہے مرد بھی رکھنا چاہتا ہے تو پھر پہلا حق انہیں کا ہے۔ وہ چیز چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی، اگر وہ اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اگر وہ معاملہ درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور معروف کے مطابق ان عورتوں کے لیے اسی طرح حق ہے جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، والرجال علیہن درجہ، اللہ نے ایک درجہ مرد کو اوپر رکھا، کیوں؟ کس وجہ سے؟ انتظامی ضرورت تھی، برابر اگر دے دیے جاتے اختیار تو 24 گھنٹے جھگڑے گھروں میں ختم نہیں ہونے تھے۔ اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے رکھ لینا یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس میں سے جو تم نے دیا ہے کچھ بھی لو۔ اس آیت پہ بالکل ہمارے معاشرے میں عمل نہیں کیا جاتا، مگر یہ وہ دونوں ڈرے، وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے، کیونکہ تحفہ دے کے جو واپس لیتا ہے وہ کیا ہے؟ جیسے کتے نے کیا کیا اس کو چاٹا جائے، تو کوئی بھی تحفہ چاہے اب نہیں بن رہی لیکن دے دیا تو دے دیا، نہیں اس میں بھی دینا پڑتا ہے، اس کو اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے، کھلا بالکل ایک الگ چیز ہے۔ کھلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ جب وہ اپنا دعویٰ کرتی ہے نا تو جب اپنی رپورٹ وہ لکھواتی ہے تو اس میں یہی حق ہوتا ہے کہ میں اپنا حق چھوڑ رہی ہوں اور مجھے اس سے خلاصی چاہیے۔ ہاں عدت تو ہو سکتا ہے لیکن ربینہ بعض مرضی دیتے کہ ہمیں دینا نہ کچھ پڑے خود کھلا نہیں، ہاں اکثر اسی طرح کرتے ہیں، اسی طرح۔ پھر اگر تم ڈرو، اب دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ احسان کا معاملہ کرو، احسان کا، اچھا وقت گزارا ہے ابھی بھی اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ، کچھ وقت تو اچھا گزارا ہی ہوتا ہے نا آخر۔ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ والی جو بات ہے نا بانو، یہ وہ کہ عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے جو کچھ اس کے پاس ہے، بعض اوقات ہوتے ہیں بڑے خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جان نہیں چھوڑ رہے ہوتے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان سے آگے مت بڑھو، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں، پھر اگر وہ اسے
तलाक दे दे यानी तीसरी, तो इसके बाद वो इसके लिए हलाल नहीं होगी, यहाँ तक कि इसके अलावा किसी और खामन से निकाह करे। फिर अगर वो इसे तलाक दे दे तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं, दोनों आपस में रुजू कर लें। अगर समझें अल्लाह की हदें कायम रखेंगे, ये अल्लाह की हदें हैं, तिल का हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिकौमिन यअलमून, वो इन्हें इन लोगों के लिए खोल कर बयान करता है जो जानते हैं। और जब तुम औरतों को तलाक दो बस वो अपनी इद्दत को पहुंच जाएं, इन्हें अच्छे तरीके से रख लो या इन्हें अच्छे तरीके से छोड़ दो, इन्हें तकलीफ देने के लिए ना रोके रखो ताकि इन पर ज्यादती करो। जो ऐसा करे सो बिलाशुबा इसने अपनी जान पर जुल्म किया। अल्लाह की आयत को मजाक ना बना, वला तत्तखिजू आयातिल्लाहि हुज़ुआ। और आज हमारे यहाँ ये माशरे में ऐसा ही हो रहा है जगह जगह। अपने आप पर अल्लाह की नेमत याद करो, उसको भी जो उसने किताब और हिकमत में से तुम पर नाजिल किया। अब देखिए कि किस तरीके से हजरत जैद का और हजरत ज़ैनब का निकाह हुआ और किस तरीके से वो अलग हुए और फिर कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे निकाह। कोई एक चीज, कोई एक बात आपको उनके बारे में, हत्ता कि क्या कहते हैं हज़रत ज़ैद कि मैं उनके मकाम की वजह से नजर उठा के ना देख सका, कि जब पैगाम जब देने गए हैं तो मैं उनके मकाम की वजह से। सुभान अल्लाह। वो तुम्हें इसके साथ नसीहत करता है, अल्लाह से डरो और जान लो बेशक अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। और जब तुम औरतों को तलाक दो बस वो अपनी इद्दत को पहुंच जाएं तो इन्हें इससे ना रोको, वो अपने खामदों से निकाह कर लें जब वो आपस में अच्छे तरीके से राजी हो जाएं। ये बात है जिसकी नसीहत तुम में से इसको की जाती है जो अल्लाह यौम आखिरत पर ईमान रखता है। ये तुम्हारे लिए ज्यादा सुथरा और ज्यादा पाकीज़ा है, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। और माएँ अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं, इसलिए जो चाहे कि दूध की मुद्दत पूरी करे, वो मर्द जिसका बच्चा है इसके जिम्मे मारूफ तरीके के मुताबिक इन औरतों का खाना और इनका कपड़ा है। किसी शख्स को तकलीफ नहीं दी जाती मगर इसकी गुंजाइश है, ना माँ को उसके बच्चे की वजह से तकलीफ दी जाए और ना इस मर्द को जिसका बच्चा है। दोनों ही तरफ ज्यादती होती है। अगर बच्चा माँ ले गई तो कहेगी बाप को शक्ल नहीं दिखानी। अल्लाह रहम करे, हमारे माशरे में हर काम ही उल्ट चल रहा है, उसी के बच्चे की वजह से और वारिस पर भी उसी जैसी जिम्मेदारी है। फिर अगर वो दोनों आपस की रजामंदी और बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं। अगर तुम चाहो कि अपने बच्चों को दूध पिलवाओ तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, जब मारूफ तरीके के मुताबिक पूरा अदा कर दो तो तुमने दिया था। अल्लाह से डरो और जान लो बेशक अल्लाह जो उसको तुम कर रहे हो खूब देखने वाला है। और जो लोग तुम में से फौत किए जाएं, बीवियां छोड़ जाएं और वो अपने आप को 4 महीने 10 रातें इंतजार में रखे, फिर जब अपनी मुद्दत को पहुंच जाए तो तुम पर इसमें कुछ गुनाह नहीं, जो अपनी जानों के बारे में मारूफ तरीके से करें। अल्लाह इससे जो तुम करते हो पूरी तरह बाखबर है। और तुम पर इस बात में कुछ गुनाह नहीं जिसके साथ तुम इन औरतों के पैगाम निकाह का इशारा करो या अपने दिलों में छुपाए रखो, अल्लाह जानता है। अब कौन सी बात गुजर रही थी यहाँ पे, कौन सी इद्दत हुई थी जिसमें शौहर फौत हो जाए। वहां पे कहा जा रहा है कि अगर इशारा देना चाहो निकाह के पैगाम का दे सकते हैं, और अगर तलाक है इद्दत गुजर रही है उसमें कतन नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला को ये ज्यादा पसंद है कि वो पहले शौहर की तरफ लौट जाए। ये अपने दिलों में छुपाए रखो। तो इसके बारे में ये है कि किस तरह से इशारा दिया जाएगा। इब्ने अब्बास फरमाते हैं इससे मुराद ये है कोई शख्स ये कहे मेरा शादी करने का प्रोग्राम है और मैं चाहता हूँ अल्लाह ताला मुझे कोई नेक बीवी अता करे, कि अगले औरत तक इतना पैगाम दे दें, डायरेक्ट ना कहें लेकिन उससे फिर अंदाजा हो जाए। या अपने दिलों में छुपाए रखो, अल्लाह जानता है तुम इन्हें जरूर याद करोगे।
लेकिन इनसे पोशीदा अहद व पैमान मत करो, मगर ये कोई मारूफ बात करो, निकाह की गिरा पुख्ता न करो, यहाँ तक कि लिखा हुआ हुक्म अपनी मुद्दत को पहुंच जाए। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा मसला चल रहा था, इसको आप अरबी में पढ़ लें। वला तअज़िमु उक़दतन निकाहि हत्ता यबलुगल किताबु अजला, यहाँ तक कि लिखा हुआ हुक्म अपनी मुद्दत को पहुंच जाए, और जान लो बेशक अल्लाह जानता है तुम्हारे जो दिलों में है। इसके बारे में हमें ये भी पता चलता है कि अगर इद्दत के दौरान निकाह हो जाए तो उसके बारे में है कि ये निकाह फिस्क होगा, और कुछ उलमा के नजदीक दोबारा से निकाह नहीं हो सकता, और कुछ के नजदीक हो सकता। अगर निकाह कर लें तो फिर सजा नहीं देनी चाहिए। वअलमु अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम फहज़रू, और बेशक जान लो अल्लाह जानता है जो तुम्हारे दिलों में है, बस इससे डरो। और जान लो बेशक अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला और निहायत बुर्दबार है। तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम औरतों को तलाक दे दो, जब तक कि तुमने इन्हें हाथ ना लगाया हो या इनके लिए कोई मेहर मुकर्रर ना किया हो। इन्हें सामान दो, वुसअत वाले पर उसकी ताकत के मुताबिक और तंगी वाले पर उसकी ताकत के मुताबिक। सामान मारूफ तरीके के मुताबिक देना है, नेकी करने वालों पर हक है। यानी मेहर जो है मुकर्रर नहीं हुआ तो फिर क्या है, आसानी के साथ जितना दे सकें उतना दे दें। अभी क्या था, रुखसती नहीं हुई। अगर तुम इन्हें इससे पहले तलाक दे दो, इन्हें हाथ लगाओ, इस हाल में तुम इनके लिए कोई मेहर मुकर्रर कर चुके हो। तुमने जो मेहर मुकर्रर किया है इसका कितना देना है, आधा, निस्फ देना। मगर ये कि वो माफ कर दे, औरत को इख्तियार है, या वो शख्स माफ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। वो कौन है, वली। ये बात तुम माफ कर दो, सुबहान अल्लाह। व अन तअफू अक़रबु लित्तक़वा, और अगर तुम माफ कर दो तो तक़वा के ज्यादा करीब है। और आपस में एहसान करना ना भूलो, इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह उसको जो तुम कर रहे हो खूब देखने वाला है। अगर कुरान पे अमल करना शुरू हो जाए तो हमारा मुआशरा जन्नत ना बन जाए। इतने ये बड़े बड़े मसले कितनी आसानी से सुलझ जाए। हाफिज़ु अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, सब नमाजों की हिफाजत करो और दरमियानी नमाज की अल्लाह के लिए फरमा बरदार होकर खड़े हो जाओ। अमूमन इस टाइम पे इंसान बहुत मसरूफ होता है, और अगर ऐसे कोई झगड़े चल रहे हों तो फिर वो दिन का ही औकात होते हैं ना अमूमन। तो क्या है, नमाज फिर भी अपने वक्त पर अदा की जाएगी, और किसी भी झगड़े किसी भी परेशानी की वजह से नमाज में कोताही नहीं होती। और ये कौन सी नमाज का जिक्र हो रहा है, असर की नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप जानते हैं कि बद्दुआ की थी। क्या कहा था, ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पे उन्होंने हमारी सलातुल वुस्ता यानी असर की नमाज से रोक दिया। अल्लाह ताला इनके घरों को और इनके कब्रों को आग से भर दे। कभी ऐसी बद्दुआ नहीं करते थे। इतना बड़ा लॉस है। और एक और हदीस, वो क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने उमर से रवायत है, जिसकी असर की नमाज फौत हो गई, गोया इसका अहलो अयाल और माल लूट लिया गया, सब कुछ उसका तबाह हो बर्बाद हो गया। यानी उसके घर वाले भी गए और उसका माल स्वार भी गया। और कब्र में कौन सा वक्त नजर आएगा, असर का। इसलिए खास तौर पे इस नमाज का ख्याल रखा करें, फजर और असर में। और ये दोनों नमाजों में, जो फरिश्तों वाला आप देखेंगे तो दोनों नमाजों में होता है, लेकिन जो खास तौर पे हमें यहाँ पे बताया गया वो इस वजह से इसकी खास अहमियत है। फाइन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबाना। फजर अमूमन आपने देखा आज की उम्मत पे जरा भारी हो गई है, वरना पहले जमानों में फजर हर कोई पढ़ लेता था, बाकी नमाजें भारी हो जाती थी। अभी भी अपने मेट्स को पूछेंगे, कहेंगे हाँ जी बाजी पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते, फजर जरूर पढ़ते हैं। अब क्योंकि सोने की रूटीन अपसेट हो गई है ना, तो इसलिए फजर अब जो है वो खराब होना शुरू हो गई है, लेकिन आम तौर पे लोग फजर जरूर पढ़ लिया करते थे। फिर अगर तुम
डरो तो पैदल पढ़ लो या सवार, फिर जब अमन में आ जाओ तो अल्लाह को याद करो जैसे उसने तुम्हें सिखाया। जो तुम नहीं जानते थे, जो लोग तुम में से फौत किए जाते हैं और बीवियां छोड़ जाते हैं अपनी बीवियों के लिए 1 साल तक निकाले बगैर सामान देने की वसीयत करें। ये आयत सही है या मनसूख हो चुकी है? मनसूख हो चुकी है। फिर अगर वो निकल जाए तो तुम पर इस पर कोई गुनाह नहीं, जो वो मारूफ तरीके से अपनी जानों के बारे में करें। अल्लाह सब पर गालिब और कमाल हिकमत वाला है। और इन औरतों के लिए जिन्हें तलाक दी गई, कुछ न कुछ सामान देना मारूफ तरीके से लाज़िम है, परहेजगारों पर हक है। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयत खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझो। अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत। क्या आपने इन लोगों को नहीं देखा जो मौत के डर से अपने घरों से निकले, क्यों कि मौत ना आ जाए, और सब के सब निकल खड़े हुए। जबकि वो कई हजार थे तो अल्लाह ने इनसे कहा मर जाओ, फिर इन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़े फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और अल्लाह के रास्ते में लड़ो और जान लो, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। यानी मौत अगर आनी है वो घरों में भी आ जानी है। अल्लाह के लिए अगर निकलेंगे जहाद करने तो जरूरी नहीं सभी शहीद होकर आएंगे। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा। कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज, बस वो इसे इसके लिए बहुत ज्यादा गुना बढ़ा दे। अल्लाह बंद करता है, वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुत, और खोलता है और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। एक छोटा सा टाइम है जो हमें अल्लाह ने दिया है, इस्तेमाल कर लो। इस माल को जिस काम में लगाना चाहते हो। क्या तुमने मूसा के बाद बनी इसराइल के सरदारों को नहीं देखा, जब उन्होंने अपने एक नबी से कहा हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दे, हम अल्लाह के रास्ते में लड़े। उसने कहा यकीनन तुम करीब हो, अगर तुम पर लड़ना फर्ज कर दिया जाए तो तुम ना लड़ो। उन्होंने कहा हमें क्या है, हम अल्लाह के रास्ते में ना लड़े। हालांकि हमें हमारे घरों और हमारे बेटों से निकाल दिया गया। फिर जब इन पर लड़ना फर्ज कर दिया गया तो इनमें से बहुत थोड़े लोगों के सिवा सब फिर गए। अल्लाह इन जालिमों को खूब जानने वाला है। और इनसे इनके नबी ने कहा बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया। उन्होंने कहा इसकी हुकूमत पर हम पर कैसी हो सकती है, जबकि हम हुकूमत के इससे ज्यादा हकदार हैं। इसे माल की कोई वुसअत भी नहीं। फरमाया बेशक अल्लाह ने इसको चुन लिया है और इसे इल्म और जिस्म में ज्यादा फराखी अता फरमाई। अल्लाह अपनी हुकूमत जिसे चाहता है देता है। अल्लाह वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। इनके नबी ने इनसे कहा बेशक इसके बादशाह होने की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से एक तसल्ली है, और इसमें से चंद बाकी मानदा चीजें हैं जो मूसा की आल और हारून की आल ने छोड़ा था। फरिश्ते इसे उठाए हुए होंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए यकीनन एक निशानी है अगर तुम मोमिन हो। फिर जब तालूत लश्करों को लेकर जुदा हुआ तो कहा बेशक अल्लाह एक नहर के साथ तुम्हारी आजमाइश करने वाला है। बस जिसने इसमें से पिया वो मुझसे नहीं, और जिसने इसे चखा तो बेशक वो मुझसे है, मगर अपने हाथ से एक चुल्लू भर पानी ले ले। तो इनमें से थोड़े लोगों के सिवा सब ने पानी पी लिया। कितने थे ये? 70,000। और कितने थे जो बाकी रह गए? 313। जिन्होंने पानी पिया उनके पेट भारी हो गए, और कहते हैं उन्होंने तो फिर मुंह ही डाल दिए नहर के अंदर। और फिर अब क्या था, अब वो उठने के काबिल ना रहे। जो लोग समझते थे यकीनन वो अल्लाह से मिलने वाले हैं, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत एहसास है। क़ालल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, वो जिनको यकीन था वो अपने रब से मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा थोड़ी सी जमातें ज्यादा जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ गईं। वल्लाहु मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।
اور جب وہ जालूत और इसके लश्करों के सामने हुए तो कहने लगे, जहाँ कमजोर अपने आप को महसूस करें, अल्लाह है ना, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सुभान अल्लाह। 313 रह गए थे और आगे फौज कितनी ज्यादा, वो हजारों में, 70,000 में से अब इतने लोग निकल रहे होते हैं तो जाहिर है जो पीछे बचते हैं उनके ईमान भी कमजोर होने लगते हैं, लेकिन ये सही ईमान वाले थे, इन्होंने अपने रब से दुआएं करनी शुरू कर दी। ए रब हम पर सब्र उड़ेल दे, हमारे कदम साबित रख और इन काफ लोगों के खिलाफ हमारी मदद फरमा। तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इन्हें शिकस्त दी। दाऊद ने जालूत को कत्ल किया, अल्लाह ने इसे बादशाही और दानाई अता फरमाई और जितना कुछ चाहता था सिखा दिया। और अगर अल्लाह का लोगों के इनके बाज को बाज के साथ हटाना ना होता तो यकीनन जमीन बर्बाद हो जाती। कौन थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम? एक आम सिपाही, कोई नहीं उनको जानता था। और जो बातें बताई जाती हैं कि किस तरीके से वो लड़े थे और उसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल तो नहीं मिलती। बहरहाल ये है कि एक आम सिपाही थे और उसके बाद जब उनके जरिए से वो बादशाह मरा तो उनको फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बादशाह अता की और बादशाह ने जो ताल्लुक था उसने अपनी बेटी की शादी इनके साथ कर दी। बरा बिन आज़िब कहते हैं, मुझे सहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो बदर में शरीक थे इनकी तादाद ताल्लुक के साथियों के बराबर थी, जो नहर से पार हुए 310 से कुछ ज्यादा। और बरा कहते हैं, अल्लाह की कसम इसके साथ किसी मोमिन के सिवा कोई पार नहीं हुआ। और इसी तरह जरी कहते हैं कि जिसने चुल्लू भर पानी पिया वो सैर नहीं हुआ, जिसने खूब पानी पिया वो सैर हो गया। जिसने चुल्लू भर पानी पिया वो सैर हुआ, यानी कि उसका पेट भर गया, और जिसने ज्यादा पी लिया उसके अंदर और ज्यादा जो है वो प्यास की शिद्दत बढ़ती चली गई। तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इन्हें शिकस्त दी। अगर अल्लाह का लोगों को इनके बास को बास के साथ हटाना ना होता तो यकीनन जमीन बर्बाद हो जाती, लेकिन अल्लाह जहानों पर बड़े फजल वाला है। ये अल्लाह की आयात हैं और हम इन्हें हक के साथ तुझ पर पढ़ते हैं, बिलाशुबा तू यकीनन रसूलों में से है। आयतुल कुर्सी आगे पढ़ने है, दुआ नहीं करते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी